Question is, find all pairs of consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10. जो दो नंबर आप सिलेक्ट कर रहे हो वो should be less than 10 and sum is more than always 11. So let the consecutive odd positive integers be x and x plus 2, right? So according to question, both should be less than 10. X is also less than 10, x plus 2 is also less than 10. So what do I get? I get x less than 10, or it is what? X is less than 8, and the sum should be, sum of these two integers should be greater than 9 by 2. So this gives you 2x less than, sorry, it was greater than 11. X plus 2 should be greater than 11. So you'll get 2x is greater than 9. This implies x is greater than 9 by 2, which is 4.5. Okay. So आपका odd integer है, तो this is what x is greater than 4.5. So next integer is what? Odd होना चाहिए, तो it could be 5, it could be 7, it could be 9, and every number should be less than 10, right? So these are the value of corresponding values of x. x plus 2 के corresponding value क्या होंगे? 7, 9 and 11. Now क्वेश्चन था कि जो सम है नंबर है वो शुड बी ग्रेटर देन 9 by 2 और ग्रेटर देन, जो सम शुड बी ग्रेटर देन 11. नंबर शुड बी ग्रेटर देन, व्हाट डिड आई गेट हियर? नंबर शुड बी लेस देन 8. 8 से छोटे नंबर लेने, तो दिस नंबर विल बी रिजेक्टेड हियर. x की वैल्यू रिजेक्ट हुई है, नॉट x plus 2 की वैल्यू. ठीक है, अभी देखते हैं कैसे करना है इसका. x should be less than 8, but जो sum है, sum of two numbers है, that should be greater than 11. Okay, 5 plus 7 12. तो first pair आपका आया 5 और 7. Okay, if I take 7 और 9, तो I get 7 आपका 8 से छोटा है, तो you can take it, और x plus 2 आप ले सकते हो. तो नेक्स्ट पेयर वुड बी 7 and 9. तो 9 यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, तो यू कैन मूव टू 11. देयरफॉर दीज आर दी ओनली टू पॉसिबल पेयर्स. डोंट बी कंफ्यूज, ये x की वैल्यू थी जो लेस देन 8 होनी ज़रूरी है हमारी, यह लेस देन 10 होनी ज़रूरी है, बट x plus 2 की वैल्यू कुड बी ग्रेटर. ये x है और ये x plus 2 है, तो x अगर 5 ले रहे हो तो कॉरस्पॉन्डिंग y 7 आया, अगर x आप 7 ले रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 9 आएगा. तो ये आप ऐसे कर सकते हो. तो दीज आर द पॉसिबल टू पेयर्स, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter shortest than the longest side. So let shortest side x, so आपकी जो longest है, longest side जो है that will be what? 3 times of the shortest side. third side आपकी क्या है? third side is 2 centimeter shortest than the longest side. These are the equations. So how to frame it? The perimeter is of the triangle is at least 61. At least stand for greater than equal to the perimeter of the sum of all sides. This is what? 3x minus 2. So perimeter is at least 61. So what does it mean? It is greater than equal to 61. So now 3 plus 3 is 7 plus 8. 8x is greater than 63. 3 plus 3, 7x is greater than 63. So x comes out, you'll divide by 7 on both sides. So you'll get x is greater than 9. So minimum value of x is 9. Exactly you can write equal to 9, क्योंकि मिनिमम पूछा उन्होंने, और यहाँ पे x ग्रेटर देन, इट कुड बी 9 और ग्रेटर देन 9 बट नॉट लेस देन 9, बिकॉज ग्रेटर देन का साइन है तो मिनिमम वैल्यू 9 ही हुआ आपका, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A man wants to cut three lengths from single piece of a board which is 91 सेंटीमीटर. आपको 3 लेंथ्स में डिवाइड करना है एक 91 सेंटीमीटर का बोर्ड. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकेंड लेंथ है इट शुड बी 3 सेंटीमीटर longer than the shortest and third length is to be twice as long as the shortest. Both are the applied on first one. So shortest part. What are the possible lengths for the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? Okay. So अगर हम shortest को assume कर लें कि x है, यही हमें find करना है. सेकेंड है 3 मोर देन दिस, तो सेकेंड पार्ट जो है आपका x प्लस 3 होगा. एंड थर्ड इज वॉट ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट, थर्ड इज ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट, तो 2x. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन these total length either would be 91 or will be less than 91. It cannot be more than 91. So x plus 3 plus 2x is less than equal to 91. So what do you get here? X plus 4x plus 3 less than 91. Alright. So this is your first equation. Or you can simplify this. So you get 4x minus 3 करोगे both side you'll get 91 minus 3 88 divide by 4 किया तो you're getting x is less than equal to 22. Take this first equation. Alright, now they've said जो आपका थर्ड पीस है यानी कि जो आपकी थर्ड साइड है that is at least stand for greater than equal to 5 more than second, and second was x plus 3. So now subtract x from the both side, you'll get x is greater than equal to 8. Second equation. So put inequalities this way, less than equal to, put x here, x is closed from this side, so you will put 22 here, x is open at this side, so x is lying between 8 and 22, but they've asked for the shortest part, so shortest part could be x only, so 8 only, so x will be 8, right? Question next we have graphical solution of linear equation into two variables. Okay, so टू वेरिएबल में इन इक्वेशंस. सो इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो होगी कुछ इस टाइप की, इज इक्वल्स टू 6, एंड सेकेंड हमारा इट कुड बी ग्रेटर देन 6, थर्ड इट कुड बी लेस देन 6, फोर्थ इट कुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, फिफ्थ इट कुड बी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 6. तो हम ये ऑल 5 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि हाउ विल चेक द बाउंडेड एरिया है, जो भी आपका एरिया रिक्वायर्ड है शेड करने के लिए वो कौन सा वाला करोगे. ठीक है. सो फर्स्ट आई हैव इफ x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6. सो यू नीड एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, बट आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, बट नाउ विल डू ओनली फॉर 2 पॉइंट्स. टेक x, टेक y. इफ यू पुट x 0 you get y 3, and if you put y 0 you get x 6. That's it. So now I have to plot the graph of this equation. So how will plot it? If x is 0, what is y? When x is 0, y corresponding value of y is 3, right? If you're taking x is 6, y comes out 0. So join these 2 points to get the line. Now they've asked for a solution of this equation. तो इस लाइन के आपके होंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन. वाई सो? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. वाई सो? आप कोई भी पॉइंट लो. एक्स आपने सपोज, ये तो मैंने खुद से 2 पॉइंट लिए, यहाँ पे बहुत पॉइंट आ सकते थे. अगर एक्स आप 2 ले रहे हो तो इफ़ यू आर टेकिंग x2 यू गेट y2, तो x2 y2 ये पॉइंट हुआ. ऐसे ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है. तो देर आर सो मैनी पॉइंट्स. अगर आप लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो तो पता नहीं कितने पॉइंट्स आ जाएंगे. देयरफॉर इट हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन. वो सारे के सारे सोल्यूशन इस लाइन पे फॉल करेंगे, नॉट ऑन लेफ्ट नॉट ऑन राइट. सो इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस, राइट?
नेक्स्ट यू हैव टू प्लॉट x प्लस 2y ग्रेटर देन 6. सेम करना है आपको क्वेश्चन जैसे भी हम करके आए हैं. x y आपने लाइन प्लॉट कर लेनी है पहले. x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. तो x0 y3 y0 x6. ठीक है. So let's plot this x0 y3 x6 y0. Now if there is an inequality, अगर inequality है आपका तो आपकी लाइन सिर्फ अगर हम स्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो, अगर स्ट्रिक्ट inequality है ये वाली है ये वाली, तो आपकी लाइन आपने डॉटेड प्लॉट करनी है. प्लॉट एंड डॉटेड लाइन प्लॉट होगी. अब आपने क्या देखना है कि आपका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन सेट किस साइड लाई करेगा, लेफ्ट साइड के राइट साइड. सो हाउ विल चेक इट. द बेस्ट तरीका आपका है कि आप इस पर ऑरिजिन चेक कर लो. अगर ऑरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है तो चेक ऑरिजिन. ये आपका हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते आप. एक आधा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आप ओरिजिन नहीं चेक कर पाओगे, उस केस में आप कोई और पॉइंट चेक कर सकते हो. ओरिजिन चेक करने का मतलब क्या है, इस लाइन में x भी 0 करो y भी 0 करो. तो जब आप 0 0 करते हो तो यू गेट 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6. So you get 0 greater than 6. Is it true? No. 0 cannot be greater than 6. तो ये false हुआ. अगर false है तो what does it mean? ये मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रही हूँ, आपने नहीं लिखना. Origin does not satisfy. अगर origin satisfy नहीं करता तो you will move away from origin. अवे फ्रॉम ऑरिजिन. अगर मैं लेफ्ट ये वाला पार्ट ऐसे प्लॉट करती हूँ तो ये टुवर्ड ऑरिजिन हुआ, बट अवे फ्रॉम ऑरिजिन आपका ये वाला पार्ट हुआ. तो जो आपका शेडिंग पार्ट आएगा वो ये वाला हो जाएगा. एक एरो आपने इधर लगानी है, एक एरो इधर लगानी है, और बीच वाला पार्ट आप शेड कर दोगे. This is your answer for this question, right? These are the solution, but you cannot take value on this line, any value on this line, because it's greater values not equal to. So इसीलिए हमने लाइन को डॉटेड प्लॉट किया है, right? So now I have x plus 2y greater than 6. You can take the points first. x y x0 y 3 y0 x6. This is x plus 2y is equals to 6. Okay, so this point and this point line will be dotted about because there is strict inequality, no slack inequality. So this is the line. Now I have to check origin. Check origin. Origin check करोगे तो 0 0 आपने चेक करना है किस पॉइंट पे, x प्लस 2y लेस देन 6 वाली लाइन पे. तो 0 प्लस 0 लेस देन 6. इन दिस केस आपका ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है. ऑरिजिन अगर सेटिस्फाई करता है तो यू विल मूव टूवर्ड ऑरिजिन. इफ यू मूव टूवर्ड ऑरिजिन पुट इन यू विल मूव टू लोअर हाफ प्लेन. और हाँ, एक और बात, इस वाले केसेस में जो आंसर आता है या तो लोअर हाफ या अपर हाफ, या यानी कि हाफ रीजन आएगा. अगर लाइन ऐसे है तो या तो ये वाला पार्ट आंसर में आएगा या ये वाला पार्ट आंसर में आएगा. अगर लाइन आपकी सपोजिंगली ऐसे तो अपर वाला आएगा या बिलो वाला पार्ट आएगा. तो आप सोल्यूशन में लिखोगे ये बात. पिछले क्वेश्चन में आई फॉरगॉट टू राइट डाउन. तो क्या था यहाँ पे आपका अपर हाफ शेडेड, अपर हाफ सोल्यूशन इज सोल्यूशन. सो इन दिस केस मेरा ऑरिजिन सेटिस्फाई कर गया. आई मूव टूवर्ड ऑरिजिन. तो दिस इज योर शेडेड पार्ट, बट लाइन विल बी डॉटेड बिकॉज हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है. नेक्स्ट पार्ट, इन दिस केस आपका जो इनइक्वालिटी है दैट इज स्लैक. अगर आपकी स्लैक इनइक्वालिटी है, यहाँ पे क्या मतलब है कि x प्लस 2 समटाइम्स कैन बी इक्वल टू 6 ओकेजनली. तो इक्वल टू 6 है तो आपका जो लाइन है अगेन डॉटेड नहीं आएगा, सॉलिड ही आएगा. ये लाइन आपका यहाँ से जाएगी. दिस विल बी योर लाइन. यूज स्केल टू ड्रॉ दिस लाइन. आई एम मेकिंग इट फ्री हैंड सो दैट इट्स नॉट एक्चुअली स्ट्रेट. सो check origin. If you check origin you put 0 plus 0 greater than 6. तो ये तो
not satisfying false है तो it will move away from origin, तो you put 2 arrows here and this will be your shaded part. In this case इसका मतलब हो जाता है कि line भी included है, ठीक है. तो similarly when you plot this one, so you'll get this line, and here if you check origin 0 plus 0 is less than 6, 0 is less than 6, true, तो origin satisfy करेगा, you will move toward origin. तो this is your answer. This is how we plot these lines. तो इसका भी upper half है, इसका above half solution है, so you'll write these points. Okay, so that's all for today. Thank you.